بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زرد جوت کون تھا؟ تو سامعین آئیے اس کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ یوگل گھوڑا روکیں، میری دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی ہیں۔ کشن بری طرح سے بے قرار ہو گیا تو ڈلناس نے لپک کر باگیں پکڑ لیں۔ دونوں بھائی بجلی کی تیزی سے ایک ہی جست میں نشست بدل لیتے تھے۔ یوگل نے باہوں میں لے کر گالوں گردن کو چومنا شروع کر دیا کہ بڑے ماموں گھوڑا قریب لے آئے۔ گھوڑے سر پٹ دوڑ رہے تھے۔ یوگل حوصلہ ہمت تسلیاں بن گیا تھا۔ ماموں بھی حوصلہ دے رہے تھے۔ یوگل باپ کی فوٹو بار بار دکھا کر کہتا، ہمارا عظیم بے گناہ باپ، جس کے طواف کو وولگا نے بھی خوش بختی جانا، جس کی سمادھی سے 12 ورشوں سے لیڈی ورتھا لگی ہے، وہ عظیم لامتناہی حسن کا مالک بابل، جو سندر بدیشی کا آخری پڑاؤ ہے، سندر بدیشی جو معشوق ہے مگر اپنے نگران کا عاشق ہے۔ سورج باپو نے سال وولگا کنارے پرارتھنا کی، تو ہم خوب بڑے اور پھلے پھولے، ہم آپ سے اتنی محبت کریں کہ خدا کا ڈر نہ ہو تو آپ کو سجدہ کریں۔ کشن نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، وہ میرا عظیم رب، وہ اوتاواں کی شان، وہ سب سے بڑا۔ کشن کے منہ سے نکلا کہ جوان پکارے، 50 ٹاپوں پہ ہنومان گڑھ کی حدود۔ ماموں پکارے، یوگل بڑا رسہ کشن کے ہاتھ میں دے۔ یوگل نے آنن فانن گھوڑا قریب کیا تو جوان نے رسہ کشن کے ہاتھ میں دے دیا۔ رسہ ہاتھ میں آتے ہی یوگل ڈلناس 7 گھوڑوں پر چھلانگیں لگا گئے۔ کشن نے ایک ہاتھ سے دونوں باگیں سنبھال لیں اور دوسرے ہاتھ سے رسہ۔ جس ہاتھ میں باگیں تھیں اس میں فوٹو بھی دبی تھی، وہ کشن نے انگلیوں کی مدد سے سامنے کی اور انگلیوں کے درمیان پھنسا لی۔ سو سویٹ، آپ کی سگندھ آنے لگ گئی ہے، وہ بولا۔ اس کی آنکھیں بہہ گئیں۔ یوگل نے ساتھ سے لپک کر فوٹو انگلیوں سے نکال کر جیب میں ڈال دی۔ جوان پکار رہے تھے، ہم ہنومان گڑھ میں داخل ہو گئے ہیں۔ طے یہ تھا کہ کشن سب سے آگے ہوگا، مگر اب یوگل کو حوصلہ نہ ہو رہا تھا۔ ماموں پکار رہے تھے، نو بھائی جی درمیان میں رہیں گے۔ یوگل بھی جواباً چیخ رہا تھا، تو ماموں ہار مان لیتے ہیں اور بیٹوں سمیت آگے نکل گئے۔ اجالا پھیل رہا تھا کہ کارواں پھانسی گھاٹ پہنچ گیا۔ کشن نے ایک ہی جست میں رسے سمیت سمادھی کے چبوترے پر چھلانگ لگا دی اور بے قراری سے باپ کی سمادھی پر ہونٹ رکھ دیے۔ بھائی سر پر پہنچ گئے۔ حوصلہ ہمت شانتی، رسہ ہاتھ سے چھوڑیں۔ یوگل باہوں میں گھیر لیتا ہے تو کشن نے ہاتھ سے رسہ چھوڑ دیا اور یوگل بھائی کزن سیٹیاں بجانے لگے تو متروں گھوڑے رسیاں چھڑا کر چاروں سمتوں میں سر پٹ دوڑنے لگے۔ ان کے سموں میں جو بھی آیا کچلا گیا۔ خالی گھوڑوں کے ساتھ ایک ایک گھڑ سوار بھی تھا۔ ہنومان گڑھ میں صرف کھولے تھے، سارے پکے گھر گرا دیے گئے تھے، صرف سورج کا گھر سلامت تھا اور وہ لیڈی ورتھا کی رہائش تھی۔ وہ کڑے پہرے میں رہتی تھی۔ جب گھوڑوں کی ٹاپیں اس نے سنی تو وہ فوراً فل لباس اور لانگ شوز تک پہن چکی تھی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی کہ بڑا گیٹ گرا کر ماموں اندر آئے اور دستانے پہنے ہاتھوں سے کھینچ کر لے آئے سمادھی پر۔ کشن سانس درست کرتا تھا، یوگل کلائیاں ملتا تھا کہ اس کی نظر لیڈی ورتھا پر پڑی تو اس نے پہلی بار لیڈی ورتھا کو دیکھا تھا تو بری طرح نروس ہو گیا۔ کیا آپ سورج کے بیٹے ہیں؟ وہ جیسے سکتے میں تھی، بے اختیار بولی۔ کشن کچھ نہ بول سکا۔ ماموں نے چبوترے پر ڈال دیا۔ گھوڑوں کے دوڑنے سے اتنی مٹی اڑی کہ دھرتی پر کوہر چھا گیا تھا۔ 1000 گھوڑوں کی دوڑ سے زمین کا سینہ کانپنے لگ گیا تھا۔ مگر متروں، لیڈی ورتھا کو چبوترے پر ڈالا گیا تو ایک دم سناٹا چھا گیا کہ سوئی بھی گرے تو آواز آئے۔ بیاکل و بے قرار بابل دیوانوں کی طرح سے لیڈی ورتھا کا طواف کرنے لگا تھا۔ وہ اتنا بے قرار تھا کہ جیسے کشن کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہتا ہو، مگر ہمت حوصلہ اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو۔ میرے سورج، دیکھ تو تیرا بابل تیری ورتھا کے طواف کو آیا ہے۔ اس کے بے قرار لبوں سے نکلا اور وہ سمادھی کو کلاوا مار لیتی ہے۔ سمادھی کے سرہانے سورج کی بائیوگرافی درج تھی۔ اس کی نظریں بائیوگرافی پر جم گئیں۔ متروں، کشن نے اس کا بلاత్కాر کر دیا۔ وہ وہیں دم توڑ گئی۔ پھٹی پھٹی نظریں بائیوگرافی پر جمی رہ گئیں۔ کشن سانس درست کرتا اٹھنے لگا کہ بھائیوں نے لپک کر سنبھال لیا۔ کزن بھی لپکے اور سارے اسے اس طرح چمٹ گئے جیسے مکھیاں شہد کے چھتے کو چمٹتی ہیں۔ ہم صدقے، ہم قربان، ہمارے باپ کے کھرے رتن مان جائے
पांचों भाई उस पर बरसने लगे थे। मामू भी फौरन आ गए और लड़कों को खींचकर अलग करने लगे थे। किशन की आंखें बंद थीं और पीठ युगल के सीने से लगी थी। बड़े मामू आगे आए और लड़कों को मार कर हटाया कि किशन बरस सह सह कर निढाल था। खबरदार, जो अब किसी ने किशन को मुंह लगाया, कहकर मामू ने किशन को संभाला। लड़के फिर लपके तो मामू ने बालों से पकड़कर चांटे लगाए। युगल, हमें किशन को डेड बॉडी से दूर ले जाना होगा, मामू बोले तो युगल ने फौरन बात पिक की और किशन को संभाले चबूतरे से नीचे उतरने लगा। समाधि बहुत ऊंची थी और चारों तरफ सीढ़ियां थी। चबूतरा बहुत बड़ा था, उस पर 20 अफराद तक बासानी बैठ सकते थे। समाधि के सराहने बरतानिया का झंडा नस्ब था। समाधि के बिल्कुल सामने फांसी तख्ता बना था, उस पर सरेआम फांसियां दी जाती थीं। समाधि के चारों तरफ खुला एरिया था और चंद खोले बने थे। समाधि लेडी वर्था ने पक्की करा दी थी और सारी जगह मार्बल इस्तेमाल किया गया था। खोले में गद्दे बिछाकर आनन फानन बिस्तर तैयार किया गया और किशन को वहां लिटा दिया गया। किशन युगल से बिल्कुल अलग ना हो रहा था तो युगल ने गोद में ही लिटा लिया। भाई बार बार किशन के करीब होते मगर मामू ने अब छूने से बिल्कुल मना कर दिया था। युगल बार बार कहता, मामू किसी भी हंगामी सूरत से निपटने से पहले भाई जी को संभालना होगा, इनकी तबीयत ठीक नहीं, ये संभल नहीं पा रहे। मामू शहद हनी पिघलाकर किशन के मुंह में डालने लगे कि वायरलेस पर मुख्तलिफ मकामात से इतलात आने लग गई। घोड़े थक कर मुख्तलिफ मकामात पर रुक रहे थे। ननिहाल वाले बरसगीर के नक्शे से निशानदेही करते निशान लगाने लगे। अभी बहुत घोड़े दौड़ रहे थे। जोहर सर पर थी तो किशन को वहीं गुस्ल करा दिया गया। लेडी वर्था की डेड बॉडी दिल्ली पहुंच चुकी थी। जोहर असर मगरिब इशा तक किशन बेसुध पड़ा रहा। चारों भाई भी साथ लगे रहे। इशा के बाद आखिरी घोड़ों की इतला आ गई। फजर के उजाले को घोड़े दौड़े तो अब आखिरी घोड़े इशा के वक़्त रुके थे। सारा इलाका बीकानेर समेत हनुमानगढ़ की हदूद में आ गया था। चूना डालकर हदूद बना दी गई। 1000 घुड़सवार 1000 घोड़ों को काबू करके फांसी घाट पर पलटे तो रगें काट कर किशन के खोले को खून से नहला दिया। मूर्खों, को एक भी मरा ना तो मैं बरज़ख से भी घसीट लाऊंगा। वापस रोको खून को। बड़े मामू आकर बिगड़ने लगे तो साथियों ने आनन फानन पट्टियां बांधी। सबको सब बारी बारी अंदर आकर किशन को देख कर तसल्ली करके खोले से निकल जाते। युगल अब खोले में किसी को न आने दे रहा था कि किसी भी हुकूमती कार्रवाई से पहले किशन का खुद का संभलना बहुत ज़रूरी था। किशन ने चंद घूंट शहद घी के कुछ ना खाया कि सवेर हो गई। इवनिंग न्यूज़पेपर में फ्रंट पर खबर छप चुकी थी और जंगल की आग की तरह बरसगीर में फैल गई कि सूरज बंसी के 20 साला बेटे किशन बंसी ने 1000 घोड़े दौड़ाकर हनुमानगढ़ फतह कर लिया और लेडी वर्था का बलात्कार करके एक बड़ी नफरी के सामने अपने कंवार उतार दिए। किशन की फ्रंट पेज पर पूरी बड़ी तस्वीर आई थी। पालन के बेटे राधे श्याम साइंस की डिग्री ले चुके थे मगर प्रैक्टिस की कोई जगह ना थी। वो 2 साल से बेकार थे और मुल्की तहरीकों के साथ बहुत परेशान रहते कि वो क्या करें। अखबार में खबर पड़ी तो किसी को बताए बगैर जीप उड़ाते हनुमानगढ़ आ गए। जोहर के वक़्त वो हनुमानगढ़ पहुंचे तो वहाँ कड़ा पहरा था। उन्होंने अपना कार्ड दिखाया तो उन्हें अंदर लाया गया। किशन अभी कल के शाख में था। राधे श्याम ने निगाह भर के देखा और बढ़कर बाहों में ले लिया और गाल पर होंठ रख दिए। मां जाए कापर आकर तकमील पा ही गया। उन्होंने किशन को सीने से लिपटा लिया था। आप कमांडर पालन के बेटे हैं? किशन धीमेपन से बोला। हाँ, राधे श्याम मेरा नाम है। किशन, तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल रूई का गाला हो। राधे श्याम वाकई किशन के हुस्न से बहुत मुतासर हुए थे। राधे श्याम के आते ही सब खोले से निकल गए थे, सिर्फ युगल थे। आप कौन? राधे श्याम ने युगल को देखा। मैं युगल, किशन भाई जी का छोटा भाई, युगल ने बताया तो राधे श्याम ने बढ़कर माथे का बोसा लिया। जाएं, आप भी आराम करें, आपकी बेख्वाब आंखें बता रही हैं आप बहुत दिनों से जाग रहे हैं। युगल ने एक नज़र किशन को देखा तो किशन ने जाने का इशारा किया। युगल फौरन बाहर निकल गया। दोनों खोले में अकेले रह गए। किशन राधे श्याम से 5 साल छोटा था। राधे श्याम 25 साल के थे। राधे श्याम ने किशन को सीने से लगा लिया तो किशन को सुकून आ गया, जैसे पनाह मिल गई हो। श्याम, मेरे साथ रहो, आई रियली नीड यू, किशन अपनायत से बोला तो राधे श्याम ने बेख्तियार कहा, मैं जाने के लिए थोड़ी आया हूँ, हमेशा साथ रहूँगा। राधे श्याम मोहब्बत शांति से आहिस्ता आहिस्ता
सारा जिस्म मलने लगे तो किशन को एहसास हुआ कमांडर पालन और उनके बच्चे बेहतरीन पनाहगाह हैं। और किशन भी जानता था बीकानेर उसका ननिहाल है, उसकी बेहतरीन पनाहगाह, मगर वो किशन की सारी संभाल करके भी किशन के छिन जाने के खौफ से खौफजदा रहते थे और साए की तरह मामू और मामूजाद साथ लगे रहते और हर वक्त उसे बरस देते रहते। इस तरह वो अपने अंदर के खौफ को दूर करते कि वो किशन के बेहतरीन मुहाफिज हैं। किशन को सही मायनों में राधे श्याम ने बांट लिया था और वो हर हकीकत का सामना करने को तैयार था, वरना वो पहले ज़्यादा घेरे में रहता और ख़ुद की भी हिफाजत करता कि उसे कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा। मित्रों, बेपनाह प्यार जहाँ आगे बढ़ने की हिम्मत देता है वहाँ कमज़ोर भी कर देता है, दूरी और छिन जाने का खौफ भी देता है। राधे श्याम ने किशन के अंदर से इन खामियों को ख़त्म कर दिया। किशन का सारा झुकाव राधे श्याम की तरफ हो गया था तो भाई और सारा ननिहाल राधे श्याम को ही हर बात बताते पूछते कि किशन ने नाना से कहा, मेरे पास अंग्रेज़ों का इल्म है पर अमली तौर पर किसी इलाके को कैसे चलाते हैं इस बात का नहीं पता। हमने पूरा एक सूबा फतह किया है, मतलब एक रियासत, इसमें कितने ज़िले हैं, कितनी तहसीलें, कितने गांव कस्बे, इन सारे मामलात को राधे श्याम हैंडल करेंगे, इसलिए जो ये कहते हैं इन्हीं पर अमल होगा। राधे श्याम नक्शा लेकर सारी नफरी के साथ बैठ गए। हनुमानगढ़ भी बहुत बड़ा इलाका था, मगर उसे शहर नहीं कह सकते कि सारा कच्चा था। पक्का घर सिर्फ सूरज का था जो लेडी वर्था की रिहाइश गाह था, बाकी सब खोलों में रहते थे। अखबार में दूसरी बड़ी न्यूज़ लेडी वर्था की डेड बॉडी इंग्लैंड रवाना कर दी गई थी। अब सारा होल्ड राधे श्याम का था। उन्होंने फतह किए गए इलाके का नक्शा तरतीब दिया और उसे बरसगीर के नक्शे से मार्क करके अलग किया और शहर, गांव, ज़िला, तहसीलें और डिवीज़न बनाए। सारे इलाके को 8 हिस्सों में तकसीम किया गया। 7 हिस्से ननिहाल को गए, एक हिस्सा किशन को आया तो किशन ने कहा, हम 6 भाई हैं, हमें सिर्फ हनुमानगढ़ काफ़ी है। बापूजी का हुक्म हनुमानगढ़ की फतह का था। बाकी गेहूं के साथ घुन भी पिस गया तो सब मुस्कुरा दिए। किशन को सूबे का गवर्नर बनाया गया, मगर उसे हनुमानगढ़ दे दिया गया। 2 हफ्ते इस सारी कार्रवाई में लग गए। राधे श्याम ने सबको अपने अपने इलाकों में भेज दिया। अब हनुमानगढ़ से ऐवान तक का सफ़र था जो राधे श्याम ने किशन को तय करवाना था। 7 डिवीज़नों के 7 कमिश्नर मामू, किशन, युगल और राधे श्याम दिल्ली ऐवान बाला पहुँचे तो अफसरान बाला बेख्तियार उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। उनकी निगाहें किशन पर जमी थीं, जिसके दाएं बाएं युगल और राधे श्याम खड़े थे। वजीर आला जिसकी बेटी का बलात्कार करके किशन ने मार दी थी, उसकी एक ही बेटी थी, वो भरी निगाहों से किशन को देखता है और उसकी ताज़ीम में खड़ा हो जाता है। लेडी वर्था की पैदाइश पर उसकी माँ मर गई थी, उसने फिर शादी ना की। वो निगाह भर कर किशन को तकता है, लब हिलते हैं। बलाशुबा लेडी वर्था की माँ नाज़क कोमल फूल थी। वो वडवीर के हाथों में बच्ची देकर मर गई थी। उसने अपनी ज़बान से वर्था को घुट्टी दी थी और माय स्वीट लेडी कहकर माथा चूमा था, तो मैंने वर्था के साथ लेडी का हिस्सा लगा दिया। सूरजबंसी के ए हसीन सपूत, बेशक तेरी सुंदरता और जवानी को सराहने के लिए ही लेडी वर्था ने जन्म लिया था। तुझ पर सलामती हो, तेरे खूबसूरत वजूद के तकमील पा जाने पर सलामती हो। ये लेडी वर्था का यादगार वजूद अपनी कीमत पा गया है। वायसराय हिंद इंग्लैंड की ब्रिटिश ऐवानों से हिंदुस्तानियों की तकदीर लेकर आता है। लंदन के कानून के मुताबिक आपको लामतनाई इख्तियारात दिए जाते हैं। मुसावदात लिखे गए और जगह जगह भेजे गए और अखबारात की जीनत बना दिए गए। जल्द किशन के लिए लंदन से मोहर बनकर आ गई और गवर्नमेंट एरिया पूछा गया तो राधे श्याम ने फांसी घाट का नाम दिया। मित्रों, सूरजबंसी का घर गिराकर वहां किले की तामीर शुरू कर दी गई। राधे श्याम ने हनुमानगढ़ का पूरा नक्शा तरतीब दिया था। किशन ने 707 भट्ठे लगाए और 707 अस्तबल बनाए। हर भट्ठे में एक वक्त में 1,30,000 ईंट बनती थी। 1 लाख ईंट अपनी होती, 30,000 किशन के सदके की मद में जाती। भट्ठों पर काम करने वाले वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स बनाए जाते तो 30,000 ईंट क्वार्टरों की तामीर में जाती और यूं सारा साल क्वार्टर्स बनने का काम लगा रहता था। गुजर एक बड़ी आला नस्ल है, दूध का व्यापार करते, दूध की तरह खुद भी खरे होते हैं, तो उनके वसी फार्म भट्टों के साथ लगते थे तो उनका भट्टों पर सारा होल्ड था।
किशन गुजरों को अजीज रखता कि वो सूरजवंशियों के नस्ल दर नस्ल मित्र थे। गुजरों की अपनी पंचायत थी तो भट्टों पर आए दिन लड़ाई झगड़े गुजर निपटाते, तो किशन उनसे बहुत खुश रहता कि मसाइल किशन की तरफ ना आते। गुजर सुलझा लेते, भट्टों को रैतल और नखिल संभालते। 707 अस्तबल थे, हर अस्तबल में 100 बैरक थी, हर बैरक में 100 घोड़ा था। यूं एक अस्तबल में 1 लाख घोड़ा था। किशन बैरून ममालक से कमज़ोर और कम सिन घोड़ा खरीदता, 3 माह रख कर उसे पालता तो मुनाफा से बेच देता। बैरून ममालक मंडियों में उसके घोड़ों की बड़ी मांग थी। डेलनास और रोहतास अस्तबलों में होते। युगल किशन के हमरा फांसी घाट बैठता था। मित्रों, कले के 2 कमरे मुकम्मल होते ही युगल ने बिहार की राजकुमारी श्रीमती महिला मिशनरी से किशन की शादी कर दी। तब मित्रों, पालन जीप उड़ाता पहली बार हनुमानगढ़ आया। आज दोनों पहली बार मिल रहे थे। पालन के साथ जीप में मरियम भी थी, रोज़ की बेटी। रोज़ मरियम पालन ने बिल्कुल शहजादियों की तरह पाली थी। वो सुप्रीम कोर्ट की जज थीं। किशन पालन को देखते ही घबराहट का शिकार हुआ और जल्दी से पैरों को हाथ लगाया। पालन ने कहर आलूद निगाहों से तका। युगल, जो एक पल के लिए भाई से अलग ना होता, अब कहीं रोपोश हो गया था। शुभ शुभ पिधारिये, किशन की जबान साथ ना दे रही थी। पालन ने झटके से तार तार काकुलें मुट्ठी में जकड़ कर खींची। सूरज का हुक्म था, कंवार उतारना। तुमने जल्दी की, मैं बर्दाश्त कर गया। तेरे कार मैंने रोज़ मरियम को पाला और तू बिहार का बोझ कम कर लाया। पालन ने पूरी कुव्वत से गाल पर हाथ जड़ दिया। श्रीमती महिला भी युगल के पीछे भाग गई थी। मित्रों, किशन के पास अंग्रेज़ों का इल्म था। उसके इल्म ने फौरन दिफा की तरकीब बताई तो किशन बाल छुड़ाकर एकदम मरियम के पीछे हो गया। मरियम जज थी। मैरी, पनाह दो मुझे। किशन ने मरियम को पीछे से कलावा मार लिया था। हमने पनाह दी, वो बोली और हाथ उठाकर पालन को रोक दिया। डैड, हमने किशन को पनाह दी। पालन को तवक्का नहीं थी कि किशन ऐसी दिलबराना हरकत करेगा। उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। क्षमा कर दे कमांडर, भूल हो गई। श्रीमती को मैं अब तलाक नहीं दे सकता। किशन ओट से बोला तो पालन बेख्तियार हो गया, बढ़कर उसे बाहों में ले लिया। किशन, सूरज ने मेरे सीने से सीना मिलाया, मानो उसकी धड़कनें आज भी मेरे साथ धड़कती हैं। मैंने तुम पर निगाह नहीं की, मगर तुम्हारे पल पल के राब्ते में मेरा पल पल इंतज़ार पलता रहा। 2 कौमी नजरिए के करब में भी मैंने मरियम को नाज बना के तेरे कारण पाला। पालन की आंखें बह गई थीं। किशन ने आंसू पूंजे, माथा चूमा और बिठाकर जूतों के तस्मे खोले। मरियम को बिठाया और उसके भी जूते उतारे। सुख सेवा की और यकीन दहानी कराई कि वो बाप के वचन से इनकारी नहीं है, उसे पूरा करेगा जल्द। पालन ने उसे नारायण खानदान का लीगली रक्षक बना दिया और बताया, मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, चारों पर तुम्हें पूरा इख्तियार है। मेरे बड़े बेटे वतन नारायण पर बेलिबास देखने पर मैंने सरकारी बैन लगाया है, मगर मैं तुम्हारे कारण छूट देता हूँ, तुम उनसे नफ़ा उठा सकते हो। किशन मुस्कुरा दिया। किशन के पास पिराडो जीप थी। कला बनकर तैयार हो गया। कले का नाम सूरजवंशी कला रखा गया।